Hello and welcome to Just Health for the People by the Experts, a public health awareness initiative by Just Look Hospital. I'm Jitendra Haryan, your host for the show. आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ और उन डिसऑर्डर्स के बारे में जो अक्सर समझ के बाहर होते हैं। हम साथ ही मिथ्स बर्स्ट करेंगे, सच समझेंगे बिना जजमेंट और बिना डर के। हमारे साथ है मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट, अ रिनाउंड न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजेश पारिक। Dr. Rajesh Parikh is the Director of Psychiatry and Medical Research at Just Look Hospital. He is Adjunct Professor of Psychiatry at the University of Iowa, Carver College of Medicine, and a former WHO global expert on depression. He has delivered over 125 international talks, conducted over 50 research studies, and has published over 125 research papers. Let me also tell you, he has authored one of the bestsellers during COVID, Coronavirus All That You Need to Know. Pleasure and honor to have you with us, Dr. Parikh, on Just Health. Welcome. Thank you. It's a pleasure and honor for me too to be with you in this podcast. So, Doctor, you are a neuropsychiatrist. Tell us about this field a little more. This is a question I keep answering all the time, and typically to doctors. Although the field has been around now for more than 4 decades, it's still not relatively well understood in terms of what it does. But if I were to summarize it in a nutshell, it's exactly what it says. It's something that falls between neurology and psychiatry. So it looks at the mental health disorders in neurological illnesses like multiple sclerosis, stroke, epilepsy. So these are the behavioral components in what is essentially a brain disorder. But it also looks at the neurological component, at the brain component in psychiatric disorders such as depression, anxiety, dementia. And today, we understand many of these psychiatric disorders as actually disorders of an impairment in brain function. You have worked for 5 years in United States and 36 years in India at Just Look. दोनों देशों के काम करने के तरीके में कैसे फर्क है? अगर ये सवाल आप मुझको 40 साल पहले पूछते तो मेरा जवाब अलग होता था। तब मैं आपको बोलता था कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आज के ज़माने और हमारे जैसे हॉस्पिटल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और इसका कारण ये है कि पहले तो जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अभी जस्ट लोक में स्टेट ऑफ द आर्ट एमआरआई फंक्शनल एमआरआई, सीटी स्कैनिंग, स्पेक्ट इमेजिंग, पेट इमेजिंग, एडवांस्ड ईईजी इमेजिंग और साइकोमेट्रिक एनालिसिस सब होते हैं। इसके आगे यूएस में और कुछ नहीं है, और हमारी इक्विपमेंट यूएस स्टैंडर्ड से है और कभी-कभी जनरल यूएस स्टैंडर्ड से भी ऊंची है। तो ये सब फैसिलिटीज़ है। और हमारे डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर्स आपने ट्रस्टीज़ ने सिलेक्ट किए, वो ज़्यादा करके सब यूएस में ट्रेंड हैं। मेयो क्लिनिक में, हार्वर्ड में, मैं जॉन्स हॉपकिंस में था, यूके में। तो जो डॉक्टर्स हैं वो हाईली ट्रेंड हैं और इक्विपमेंट है वो एडवांस्ड है, और आप सीईओ की तरफ से हमको पूरा सपोर्ट देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वी आर ऑन par. Excellent. So let's come to the topic of today's discussion. So पहले सर समझाइए हमें कि मेंटल हेल्थ क्या होती है? Mental health has been defined by the World Health Organization as a state of well-being in which an individual is able to realize his or her abilities or potential, is able to deal with the stressors of day-to-day life, is productive, contributes to society, and it is not merely the absence of mental disorders. तो इसका अर्थ यह है कि किसी को मानसिक बीमारी नहीं हो तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो मेंटली हेल्दी है। मेंटली हेल्दी होने के लिए ये सब गुण होने चाहिए कि जो स्ट्रेसेस होते हैं ज़िंदगी के, उसको हम ठीक तरह से कोप करें, हम सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव रहें, हम खुश रहें। तो ये सब क्वालिटीज़ हमको मेंटली हेल्दी रखती हैं।
नो, मेंटल डिसऑर्डर फिर क्या होता है? मतलब थोड़ा उसके बारे में समझते हैं कि आप मेंटल डिसऑर्डर किस चीज़ को कहते हो? तो पहले तो मेंटल डिसऑर्डर शुरू होता है जब मेंटल हेल्थ नहीं रहती है। करेक्ट। जैसे हमने कहा कि मेंटल हेल्थ इज नॉट merely the absence of mental disorders. Mental disorders is clearly the absence of mental health. तो मेंटल हेल्थ तो फेयरली एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें तो 3 एरिया में डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। एक तो मूड में, एक तो बिहेवियर में और तीसरा थॉट्स या विचार में। और कभी-कभी मेंटल डिसऑर्डर्स में ये तीनों में कुछ न कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और इसके कारण क्या होते हैं? कारण तो बहुत होते हैं और मुझे नहीं लगता है कि सब कारण हम अभी भी समझ पाए हैं। हम धीरे-धीरे हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है। अभी जो लेटेस्ट है और लेटेस्ट में जब कहता हूँ तो ये तो 20-30 साल की बात है कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ इज़ बायोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस इन द ब्रेन। न्यूरोट्रांसमीटर्स करके केमिकल होते हैं और दीज केमिकल्स आर इन्वॉल्व्ड इन न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन। और इनमें जब इम्बैलेंस होता है तो वी सी द डिसऑर्डर्स दैट आई जस्ट alluded to, disorders of behavior, of mood, of thinking. So but that is one area, it's not the only area. There are genetic causes. We are discovering more and more genes that are involved in the genesis and the creation of depression, of anxiety, of schizophrenia. So there is the genetic predisposition. Then there are environmental stressors, family situations. तो ज़्यादा करके सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, बहुत क्योंकि सारे कारण होते हैं उसके। और जब वो कंबाइन होते हैं तब मेंटल डिसऑर्डर्स होते एनवायरमेंटल प्रेशर्स। हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस are समझो लार्जली 3 एनवायरनमेंट में। एक तो घर के माहौल, अगर घर का माहौल ठीक नहीं होगा, घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा, हर रोज कुछ न कुछ स्ट्रेसर होता, तो वो तो से कंट्रीब्यूट करता है। फिर प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क लाइफ में, अगर वहाँ कुछ स्ट्रेसेस होते हैं, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस से ज़्यादा होते हैं, वहाँ आदमी खुश नहीं रहता है। प्रेशर ऑफ कंपटीशन। कॉम्पिटिशन, एग्जैक्टली, पीयर प्रेशर। एब्सोल्युटली। तो ये सब प्रेशर्स होते हैं और फिर आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सोशल प्रेशर्स होते हैं और ये जो सोशल प्रेशर्स होते हैं और सोशल मीडिया के आने के बाद और भी बढ़ गए हैं, तो ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनसे मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और फिर इसकी शुरुआत कब से होती है? मतलब आजकल बच्चे भी प्रेशर लेते हैं और वी सी लॉट ऑफ केसेस ऑफ सुसाइड इवन इन द स्टूडेंट्स, then postgraduates, and then of course that goes on further, in life. But आप कब से एज अ डॉक्टर यू मस्ट बी सीइंग डिफरेंट पेशेंट्स, तो आप यंगेस्ट आपने क्या पेशेंट देखा और ओल्डेस्ट कितना पेशेंट देखा आपने? Actually, I've seen across the full spectrum, but where the causes are predominantly genetic, so we see them very early, as early as 2 and 3 years of age. So these are disorders like autism, where the child, or mental retardation. So these manifest early. At the other end of the range, I have seen people as old as in their early 90s. बट इधर अलग तरह की बीमारियां होती हैं, ज़्यादा डिमेंशिया, क्योंकि ब्रेन में के फंक्शनिंग में और ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, ज़्यादा करके एज रिलेटेड, और उससे भी इलनेसेस आते हैं। और इन दोनों के बीच में हर एज रेंज में कुछ ना कुछ बीमारियां तो आती हैं। और इसके अर्ली साइंस क्या होते हैं? हाउ वन कैन सेंस कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर ये ऐसे नहीं होता, इट हैपेंस? इसमें क्या है कि ये अर्ली साइंस अलग डेमोग्राफिक एरिया में अलग होते हैं, बच्चों में अलग होते हैं, एडल्ट्स में अलग होते हैं। एक मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि जब एडल्ट्स डिप्रेस्ड होते हैं तो वो शांत बैठते हैं, ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं। अकेले रहते हैं। लेकिन जब बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं, वो दूसरे लड़कों के साथ झगड़ा करने लगते हैं, वो स्कूल में डिसरप्टिव हो जाते हैं। और कभी-कभी जब हमारे पास ये रेफरेंसेस आते हैं और हम टीचर्स को कहते हैं कि बच्चा डिप्रेस्ड है, तो टीचर बोलते हैं ये तो मुझे डिप्रेशन नहीं लगता है। जब डिप्रेशन होता है
तो लोग अकेले रहता है, ये बच्चा तो बहुत अग्रेसिव है। तो फिर हमको उनको समझाने पड़ता है कि ब्रेन के डेवलपमेंट के वजह से ये इस एज में डिप्रेशन का मैनिफेस्टेशन अलग है और एडल्ट्स में अलग है। तो ऐसे बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस होते हैं। लेकिन अगर हम जनरल में देखेंगे तो वी गो बैक टू द WHO डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। जब हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ वेल बीइंग नहीं है, किसी को तंदुरुस्ती नहीं लगती है, कभी कोई व्यक्ति अपने जो पोटेंशियल है, अपनी जो एबिलिटी है, उधर तक नहीं पहुंच पाता, तो वो एक साइन होती है। मेरे पास जो मरीज आते हैं, पहले तो मैं उनको, जैसे उनकी इम्प्रूवमेंट होती है, उनको पूछता हूँ कि कंपेयर टू योर वर्स्ट, हाउ मच परसेंट आर यू बेटर? Once they are 70 to 80% better, I change the reference point. और मैं पूछता हूँ कंपेयर टू द बेस्ट यू कैन बी, वेयर आर यू? तो ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं होता है। तो फिर वो विचार करते हैं, टाइम लगाते हैं, और जो व्यक्ति बोलता है 80% बेटर कंपेयर टू माई वर्स्ट, काफ़ी समय बोलता है कि आई एम ओनली 50% बेटर कंपेयर टू व्हाट आई कैन बी। तो पोटेंशियल ये करने का, फिर स्ट्रेसर्स बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जो रेगुलर स्ट्रेसर्स होते हैं उसको बर्दाश्त नहीं पाते हैं, प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, तो ये सब अर्ली साइंस है। ओके, तो आप इसमें मेडिकेशन कभी डिसाइड करते हो? इज मेडिसिन नेसेसरली रिक्वायर्ड इन दिस ट्रीटमेंट और ओनली काउंसलिंग और देयर आर अदर वेज टू ट्रीट? Oh, absolutely, there are other ways to treat, and medicines are not absolutely required, but in some conditions they are indeed required. In a broad way, though I don't wish to generalize, in milder disorders, counseling works, and in more severe disorders, medication works. But this is not necessarily true of all conditions. Quite often, we see patients who have done everything. They have done counseling, they have tried their best to come out of it, and medicines are required. And then again, there are certain conditions, certain illnesses. एक उदाहरण दूं आपको, किसी को डायबिटीज़ हो, तो डायबिटीज़ में भी मेडिसिन की एब्सोल्यूट ज़रूरत नहीं है। वी टेल देम टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, रिड्यूस स्ट्रेस, पर ज़्यादा करके मेडिसिन लगता है। तो कुछ बीमारियां साइकाइट्री में भी होती है, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, सीवियर डिप्रेशन, तो वहाँ दवाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और फाइनली हमारे पास टेस्ट्स होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट, दीज आर पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो कभी कभी वो टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तो वो इंडिकेट करता है कि दवाई की ज़रूरत है। आपने कहा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, बट आज भी हमारे सोसाइटी में जब साइकेट्रिस्ट को स्पेशल मिलना होता है तो लोग बहुत हेजिटेट करते हैं इनिशियली। आप इस चीज़ को कैसे देखते हो और आप इस पे आपकी क्या राय और क्या आप कहना चाहते हो लोगों को? आपने मुझे पहले पूछा था कि यूएस में और इंडिया में क्या फ़र्क है, और अभी हम देखते हैं कि इंडिया में भी स्पेशली कोविड के बाद मेंटल इलनेसेस का बहुत डीस्टिग्मेटाइज हो गया है। यानी ये शर्म की बात नहीं है। कोविड में डिप्रेशन, एंजाइटी इतनी बढ़ गई, और सोशल मीडिया की वजह से लोग इसके बारे में बात करने लगे। तो अभी लोग रेडिली काउंसलर्स के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। परहैप्स वेस्ट में है उतना नहीं है, लेकिन पहले से तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं कभी भी मेरे कोई पेशेंट को सोशल ओकेजन पे मिलता हूँ तो मैं जाके उनके साथ बात नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने ये रिसेंटली भी देखा, हमारे अपने जसलोक का ही फंक्शन था, और वहाँ कितने रिलेटिव्स और डॉक्टर्स मुझे आके मिले और उनके मेंटल इलनेस के बारे में दूसरे लोगों के सामने बात करने लगे। और जब मैं यूएस से रिटर्न हुआ था तो हमारे एक बहुत सीनियर कंसल्टेंट थे, जिनकी 50th वेडिंग एनिवर्सरी थी, और वो वेलिंगडन क्लब में थी। और जब मैं गया था तो वहाँ मेरे कुछ 8-10 पेशेंट्स आके मुझे मिले, और हम लोग सब साथ में बैठ के बात कर रहे थे। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ था। ये करीब 35 साल पहले की बात है। तो थिंग्स आर चेंजिंग इन सोसाइटी। तो मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के लिए लोग अपने डेली लाइफ में क्या चेंजेस कर सकते हैं? पहले तो ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेंटल इलनेस किसी को भी हो सकता है, ये शर्म की बात नहीं है। तो इसको एक्सेप्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर किसी ने देखा अपने आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और मैं
इन चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए है, वो तो सब लोग को होता है। मुझे कभी होता है 1-2 दिन के लिए मेरा मूड परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब वो हफ्तों के लिए चालू रहता है, उदासपन 2 हफ्ते के लिए चालू रहता है, दिलचस्पी नहीं होती है, सोशल मीटिंग्स के लिए मन नहीं करता है, तो ये सब साइंस आते हैं तो इसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। लेकिन प्रायोरिटी अपने बदन को भी देना चाहिए। आपने एक बहुत ही बेहतरीन टेड टॉक दिया था कुछ समय पहले, यूट्यूब पे अभी भी है। उसमें आपने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि यू हैव टू हैव अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड। तो बॉडी पर ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, लोगों को मिलना-जुलना, ये सब प्रायोरिटीज़ है जिससे अपनी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। और क्लोज़ रिलेशनशिप्स, जिनके क्लोज़ रिलेशनशिप्स ज़्यादा होते हैं, उनके चांसेस ऑफ मेंटल इलनेस कम होते हैं। और शुरू से मतलब खुद से भी इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, नॉर्मल लाइफ में जल्दी से जल्दी वापस जाने के लिए। मतलब वो एक फ़ेज़ हो सकता है, बट खुद से थोड़ा-सा इनिशिएटिव अगर ले, तो वन कैन मूव टुवर्ड्स दैट नॉर्मलसी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आपने योगा के बारे में कहा, तो योगा मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करने में मदद करता है? देखिए, ज़्यादा करके मैं मेरे सब पेशेंट्स को कम से कम 5 मिनट का प्राणायाम करने को कहता हूँ। और उनको मैं कहता हूँ कि मैं खुद सुबह को 15 मिनट का प्राणायाम और कुछ आसन है, वो मैं करता हूँ। मैं गए शायद 9-10 साल से कर रहा हूँ। तो मैं खुद का उदाहरण देता हूँ, तो उनको ऐसे नहीं लगे कि मैं सिर्फ़ उनको एडवाइस दे रहा हूँ और अपने आप और कुछ कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं उनको बोलता हूँ कि आप यूट्यूब पे जाइए या गूगल में जाइए और इसका रिसर्च करिए। बहुत ही कंपेलिंग एविडेंस है, गए 50 साल का, जहाँ मेडिकल सेटिंग में रिसर्च हुआ है। हार्वर्ड में एक बड़ा स्टडी हुआ था करीब 50 साल पहले कि योगा का एंग्ज़ायटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, मेडिटेशन का एंग्ज़ायटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। और ऐसे अभी तो इंडिया में भी बहुत स्टडीज़ हुए हैं, तो बहुत ही एविडेंस है कि योगा और मेडिटेशन से मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है और जब मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं, वो भी जल्द ठीक हो जाते Okay, so it works like a you say alternative mode of treatment. हैं। एब्सोल्युटली, इट वर्क्स एज़ अ ट्रीटमेंट एंड फॉर मी it's not so much alternative, it's mainstay treatment. I use it as part of my treatment, and we should not minimize its role in preventing mental disorders. It's very, very important. सर, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहली तो सबसे बड़ी मीथ ये होती है कि मेंटल इलनेस एक कमजोरी है, दैट जो स्ट्रांग होते हैं उनको मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होता है, और ये एक तरह की कैरेक्टर फ्लॉ या एक तरह की वीकनेस है। तो ये तो पहले हमको इसको समझना चाहिए कि ये वीकनेस नहीं है, बीमारी है। सेकंड मिथ है कि बहुत रेयर है। जब सर्वेज हुए और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कोविड, तो कुछ इलनेसेस में 50% ऑफ द पॉपुलेशन हैज दैट, ओह, आई सी। स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। तो ये फेयरली कॉमन है। तो ये भी लोगों को समझना चाहिए कि अगर मुझे ये हो रहा है तो मैं अकेला नहीं हूँ, काफ़ी लोगों को हो रहा है। थर्ड, यू कैन नॉट जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट। बहुत बार मैं देखता हूँ मेरे पेशेंट्स को फैमिली बोलती है, चलो ये क्या बैठे हो अकेले उदास, बाहर निकलो, काम करो, उससे आप ठीक हो जाओगे। लेकिन किसी को फ्लू हुआ या किसी को कोविड हुआ था, तब कोई नहीं कहता था कि ये कुछ नहीं है, आप निकल जाओ। और कभी जब लोग ऐसे टाइप का प्रेशर डालते हैं मेंटली इल पीपल पर, तो वो और भी बिगड़ सकती है। तो इट इज़ नॉट अ वीकनेस, इट इज़ नॉट रेयर, you cannot just snap out of it, and most important, treatments are available today of all kinds, and you should seek them. Take it like any other medical condition and see the doctor and get yourself treated. As simple as that. Absolutely, with one big difference: sometimes you do not need to see the doctor. Oh, I You see. can talk to a Your elder in the friends, your family, family. a family member, or a close friend, or sometimes even a colleague at work, a counselor, and if required, a doctor. शायद हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मैंने तो ज़रूर एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई स्ट्रेसर हो मेरी ज़िंदगी में, अगर वो मेरे फैमिली में, मेरे वाइफ के साथ, कभी-कभी मेरे बच्चों के साथ, मेरे
क्लोज दोस्त, स्कूल के जो क्लोज दोस्त हैं, उनके साथ बातचीत कर लेता हूँ, तो वो बातचीत करने में ही एक तरह का रिलीफ आता है और सॉल्यूशन अपने सामने खड़ा होता है। That's what. Now, physical health or mental health, both are important. But what is the connection between the two? They are interlinked in both ways, in both directions. Physical health is an important criteria to stay mentally healthy. अगर किसी को फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम हो, जैसे कोविड में हुआ था, जब लोग बीमार थे, आईसीयू में थे, तो उनके डिप्रेशन रेट्स बढ़ गए थे, उनके एंग्जाइटी लेवल्स हाई थी। बहुत सारी बीमारियों में, स्ट्रोक में, डायबिटीज़ में, एपिलेप्सी में, जो मेडिकल इलनेसेस है प्राइमरीली, उसमें मेंटल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, जैसे डिप्रेशन। तो एक दिशा में है, अगर फिजिकल हेल्थ सही नहीं रहेगी तो मेंटल डिसऑर्डर्स आने का चांसेस हाई है, ऐसे नहीं है कि हर हर समय आता है। बट वो दूसरी दिशा भी होती है कि जब लोग मेंटल डिसऑर्डर्स एक्सपीरियंस करते हैं तो फिजिकल हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं और वो बढ़ जाती है। कोई डिप्रेशन में हो तो एक्सरसाइज नहीं करता है, ईटिंग बदल जाता है। बहुत सारे लोग जब डिप्रेस होते हैं तो ज़्यादा खाते हैं, व्हाट वी कॉल कंफर्ट ईटिंग, तो उससे उनकी हेल्थ बिगड़ Adds जाती to है। the problem. एड्स टू द प्रॉब्लम, Hmm. लैक ऑफ एक्सरसाइज। So, and they have seen that depressed individuals have higher incidence of medical illnesses which were not there before the depression. तो ये दोनों डायरेक्शन में है, लेकिन I prefer to see the optimistic side of it. And the optimistic side of it is, if somebody is depressed and they start looking after their physical health, their depression will also get better. And likewise, if they have developed medical problems, if their depression is sorted out, their medical problems also go away. And I see this almost on a daily basis in my practice. So, आपके विचार में कौन से सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस है जो मेंटल वेलबींग प्रमोट करने में मदद करेंगे? First and foremost, to stay physically healthy with good habits. By good habits, I don't just mean exercising, but also dietary control. So, to stay physically fit. Second, meditation and yoga. You know, in today's times, people do not have the time to do yoga. तो 5-10 मिनट प्राणायाम भी कर लिया तो ब्रीदिंग से, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। 5 दिन पहले जो सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल है, द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, उसमें एक आर्टिकल ब्रीदिंग पे आया है, प्राणायाम पे, कि डीप ब्रीदिंग करने से कितनी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो जस्ट अ सिंपल थिंग, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरी बात यह है टू हैव क्लोज रिलेशनशिप्स। ये तो देखा है कि लोनलीनेस इज अ मेजर फैक्टर इन मेडिकल एंड मेंटल इलनेसेस। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, शायद आपने तो उसके बारे में पढ़ा होगा, जो हार्वर्ड लॉन्जेविटी का स्टडी है। ये स्टडी 4 जनरेशन से चल रहा है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हार्वर्ड में आए थे, आई थिंक करीब 80-90 साल पहले, उनमें स्टडी हुआ था और उनकी हेल्थ अभी मॉनिटर हो रही है। और वो उसमें दिखाई दे रहा है कि द बिगेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ इज सोशल रिलेशंस। तो मेंटेनिंग गुड सोशल रिलेशन is also a key factor in maintaining good physical and mental. So, good health is equal to good physical health, good mental health, and good emotional health. I think that's how they will connect with each other, right? Absolutely, absolutely. And as the old proverb goes, health is wealth. And once, as somebody put it, in giving the definition of a successful businessman, it was said that a successful businessman is one who sacrifices his health in order to acquire wealth. And then in the end, has to give up all his wealth to get good health. Good health, absolutely. डॉक्टर, सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है? काफ़ी असर पड़ रहा है और इसका भी रिसर्च बहुत सारी जगह में हो रहा है और अभी काफ़ी सेंटर्स में अक्रॉस द वर्ल्ड सोशल मीडिया डी एडिक्शन क्लिनिक्स लगाई हैं। इट हैज़ बीन सीन इन रिपीटेड स्टडीज कि सोशल मीडिया एडिक्शन इज एज बैड इफ नॉट वर्स देन अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन एंड इज इक्वली डिफिकल्ट टू ट्रीट।
जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में 2 साल पहले एक स्टडी आया था, उसमें देखा था कि अमेरिकन टीनेजर्स में ऑन एन एवरेज दिन में 7 घंटे सोशल मीडिया पे जाते हैं। दैट इज ऑलमोस्ट 45% ऑफ वेकिंग टाइम इन सोशल मीडिया। और So they're full time employed on social एब्सोल्युटली media. इमेजिन मोस्ट पीपल वर्क 8 आवर्स अ डे। और ये भी दिखाया गया था कि जो टीनेजर्स 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पे रोज लगाते टाइम हैं, बिताते हैं। उनमें इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी बहुत ही बढ़ जाता है। हम्म, और इंडिया में भी काफ़ी स्टडीज़ हुए हैं जिसमें दिखाई दे रहा है यही चीज़ कि टीनेजर्स ज़्यादा सोशल मीडिया पे लगते हैं, और जो ज़्यादा सोशल मीडिया करते हैं उनको मेंटल इलनेस होने की चांसेस, डिप्रेशन, सुइसाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर, बच्चों और टीनेजर्स में रेजिलियंस और मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अदर देन ऑफ कोर्स स्पेंडिंग वेरी लेस टाइम ऑन सोशल मीडिया और नॉट एट ऑल लुकिंग एट इट? Well, I would say the opposite of spending less time on social media is for the parents to spend more time with the children. एब्सोल्युटली। और बहुत सारी बात चलती है क्वालिटी टाइम। हम्म, क्वालिटी टाइम समटाइम्स इज एन एक्सक्यूज हम्म, फॉर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू द चिल्ड्रन। हाँ, मैं आधा घंटा देता हूँ लेकिन वो हाई क्वालिटी का है। चिल्ड्रन एक्चुअली नीड टाइम फ्रॉम टाइम पेरेंट्स फ्रॉम टू गाइड पेरेंट्स। देम। और हम देख रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में, सब सोसाइटीज में आजकल, हम्म, पेरेंट्स आर नॉट एबल टू गिव इनफ टाइम, इनफ गाइडेंस टू द चिल्ड्रन। Children are by themselves, and that results in their spending more time on social media. The second thing I've been noticing for many years, हम्म, जब हम सब बच्चे थे तो स्कूल से आके बैग रख के पहले हम खेलने जाते थे, और इतने सारे गेम्स थे, आउटडोर। आउटडोर गेम्स विथ आवर फ्रेंड्स। तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी होती थी बट सोशल एक्टिविटी भी होती थी। गेम्स में रूल्स होते हैं। आपका खुद का क्रिकेट सेट होगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए रूल्स बदलते हैं। तो देयर आर सर्टेन रूल्स यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू वर्क इन अ टीम, you have to make sacrifices, and more important, you have to get along with people. There is competition but there's also friendship. करेक्ट, वहाँ फ्रेंडली फाइट्स भी होते थे, आजकल वो दिखते नहीं इतना। फ्रेंडशिप ही नहीं होती है तो फाइट्स कहाँ से हो गए? करेक्ट। और आजकल हम देखते हैं, हम किसी भी बिल्डिंग में आप जाओ, अब पहले मैं देखता हूँ, मैं एंटर होता हूँ तो बच्चे नीचे नहीं रहते हैं, बच्चे खेलते नहीं है एक सबके दूसरे हाथ में से, मोबाइल होता है आजकल, और या घर पे रहते हैं, और उसी बिल्डिंग में लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया से चर्चा करते हैं। तो ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो रहा है, एंड दैट could be one of the contributors to increasing dependence on social media. मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। समझो किसको अल्कोहल का एडिक्शन हो गया, तो जैसे वो ज़्यादा अल्कोहल लेगा उसका सोशल इंटरेक्शन कम होगा, और जैसे सोशल इंटरेक्शन कम होगा वो ज़्यादा अल्कोहल लेगा। तो शायद वही हो रहा है सोशल मीडिया में, मोर सोशल मीडिया, मोर डिपेंडेंस, लेस ह्यूमन रिलेशंस। सो आई थिंक पीपल नीड क्वालिटी रिलेशनशिप्स, एंड नीड पेरेंट्स नीड टू स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन। सर, आपके करियर में आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, एनी पर्टिकुलर केस दैट यू थिंक, और जिसने आपको सिखाया हो? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। हर केस मुझे कुछ ना कुछ सिखाता है। तो जब मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई थी, जसलोक की बात है, जसलोक में 2 साल में प्रैक्टिस में था, तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी। पेशेंट ने इतनी डिफिकल्टीज लाइफ में टॉलरेट की थी। वो डिवोर्स्ड थी। 35 साल पहले डिवोर्स वाज नॉट एज सोशली एक्सेप्टेबल एज इट इज़ टुडे। और जब वो अपनी कहानी मुझे कहती थी, मैंने ये नोटिस किया कि उसमें बिल्कुल बिटरनेस नहीं है, उसमें बिल्कुल दुख नहीं है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है। वो जैसे नरेट कर रही थी कि कोई और किसी को ये हुआ होगा। और फिर ऑफ कोर्स मेरे उसकी ट्रीटमेंट 2-3 साल चली, और वो साइकोटिक थी, स्किज़ोफ्रेनिक थी। स्किज़ोफ्रेनिया में इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, मूड, बिहेवियर। और मैंने उनको एक दिन कहा कि मैंने आपसे कभी किसी के बारे में कंप्लेन नहीं सुनी है। मैंने आपके पास से कुछ बिटरनेस नहीं सुना है। आप कैसे ये मैनेज करते हैं? क्योंकि मेरे भी अभी ये क्वालिटीज़ नहीं है। तो मुझे याद नहीं है डिटेल में क्या कहा उन्होंने, बट ब्रॉडली उन्होंने मुझे उनकी फ़िलॉसफ़ी कही कि व्हाटएवर इज़ इन आवर कंट्रोल वी शुड ट्राई एंड चेंज, एंड नॉट ब्लेम अदर पीपल फॉर द चेंजेस वी कैन नॉट मेक। वो मेरे साथ लेसन अब तक मैं नहीं भूल गया हूँ।
अब तक नहीं भूला हूँ कि ऐसी एक, और अभी भी दैट लेडी इज़ अलाइव, कि वो उस समय उसकी उम्र कुछ 40s में होगी, बट अभी तक विथ ऑल हर प्रॉब्लम्स वो इतनी, जो हम कहते हैं इक्वानिमिटी, किसी की तरफ गुस्सा नहीं, बिटरनेस नहीं, वो ग्रेट ही क्वालिटी थी। और वो एक कहानी है, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। अपने जो कंट्रोल में नहीं है वो सच अ सिंपल थिंग नॉट टू थिंक मच अबाउट, बट दिस कैन बी रीजंस फॉर नॉट बीइंग मेंटली हेल्दी. एब्सोल्युटली। और मैं कितने पेशेंट्स में देखता हूँ, वो उदास होते हैं क्योंकि किसी ने कुछ कहा, उनके बॉस ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, घर में किसी ने कुछ नेगेटिव रिमार्क दिया। और कभी-कभी मैं ये लेडी का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ उनके लिए, और जब एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं उनको बताता हूँ कि ये लेडी से मैं खुद काफ़ी सीख पाया हूँ। तो आप भी सोचो कि अगर हम ज़िंदगी में से ये बिटरनेस, एंगर दूसरों की तरफ निकाल देंगे, It will improve our mental health. it will improve our mental health, because all of this doesn't affect the other person. It's only affecting us. डॉक्टर, हेल्दी बॉडी के लिए हम रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और साउंड स्लीप सजेस्ट करते हैं. तो हेल्दी माइंड के लिए क्या सीक्रेट फॉर्मूला है? You know, it's best expressed in the Zoroastrian religion. ज़ोरास्ट्रियन पारसी लोगों के रिलीजन के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं: गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। अगर कोई भी पारसी ये 3 चीज़ करेगा, तो ही इज़ फुलफिल्ड। द रिलीजन इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। और मैं सोचता हूँ कि अगर ज़िंदगी भी में इफ़ वी फोकस ऑन दीज़ 3 थिंग्स, हैव गुड थॉट्स बिकॉज़ बैड थॉट्स पोल्यूट द माइंड, हैव गुड वर्ड्स टुवर्ड्स पीपल because a word once uttered can rarely be taken back and it can hurt people. On the other hand, saying something nice to someone doesn't require a lot of effort on our part, but can sometimes change the person's life. So, to say something good, now, particularly a person in your stature as the CEO of the hospital, I know how supportive you are of everybody. But when you say something nice to someone, they treasure it. So, good words are important for our own health and for those of others, and good deeds. So, I think if I were to reduce it to something very simple, I would borrow this from Zoroastrianism. Although I must say that every religion actually has some of this in it. Yeah, and I will also remember from now on. I think so simple and powerful. Good thoughts, good words, and good deeds. So, sir, let's now come to a rapid fire question round. How do you maintain your mental health? Well, for that, you're assuming I'm mentally healthy. Of course, you're a doctor. This is one thing I tell people. People ask me that why is it that sometimes psychiatrists go through depression? Oh, really? And I tell them that doesn't a cardiologist sometimes have a heart problem? Does it mean that a diabetologist will never have high blood sugar? So, being in a profession doesn't necessarily insulate you or protect you from that problem. But to answer your question, let's assume I'm mentally healthy. And I think the things that I do are I exercise, swim regularly, I do yoga, and I maintain close relationships. I treat them as very valuable. Does spirituality have a role in mental health? Oh, absolutely. Now, not everybody believes this, but in this, I can tell you what is true in my life. Of course, I believe in God. I respect all religions. And I think I pray regularly. And I think that belief in a superior power, which created all of us, keeps us grounded and humble. And it's also keeps us secure in that there is somebody above us who's keeping a watch on us. Does smoking cannabis cause mental disorders? That's a good question, particularly in the present context, where now sometimes cannabis is being prescribed for depression. But there have been a lot of studies across the world which have shown two things: that जो vulnerable लोग होते हैं, in whom there is a tendency to develop a mental disorder, cannabis can trigger severe mental disorders. In young people, cannabis can alter the brain. But in many people, it is harmless. And that's why it is being legalized across the world. When two psychiatrists meet, do they analyze each other? So there's a joke
जब 2 साइकियाट्रिस्ट एक दूसरे से मिलते हैं, तो पहला दूसरे को कहता है, "आप बहुत ठीक हो, मैं कैसा हूँ?" Is it normal to talk to oneself? I think so. I think so. I have a few sportsmen as patients, and they certainly talk to themselves. I find a lot of people talk to themselves, sometimes as a way of motivating themselves, sometimes as a way of expressing emotions. So, talking to oneself by itself is not a sign of any mental disorder. Do you ever rehearse conversations in your head as though you have received an Oscar? Not for an Oscar, because I know that there's zero possibility of my getting an Oscar. I never thought I would get any awards, so I've not rehearsed conversations. You did give me an award 2 years ago for distinguished service in the hospital. Wasn't expecting it, so I hadn't rehearsed. But if there's a possibility you're going to give me another award, I'll start rehearsing my speech now. That was nice. Do you use humor as a coping skill or is just your natural language? I have learned to use it in my day to day life. Many things, even if they're sad, have a funny element to it. Yeah, it's part of that good words that you spoke. Yeah. And I think learning to laugh at yourself and laugh at situations keeps one happy. What is that you love to do when you are not practicing medicine? Oh, a lot of things. There are a lot of things that I love to do. I'm learning 2 languages right now. I'm learning Sanskrit and I'm learning Greek in addition to the 6 languages that I'm fairly fluent in. One of my senior colleagues, Dr. Ajay Singh, is conducting classes on the Gita in Sanskrit, and we do one shloka a day. So I find that very helpful. I paint, I do photography. Uh, there are many things that I do which help me to feel relaxed. And of course, exercise. If Dr. Parikh was not a neuropsychiatrist, what would he be? You know, I wanted to be a writer. I was convinced by many people, including editors of newspapers, that, and my second choice, of course, was to do psychiatry when I was pre medical. Okay. And I was told that, well, if you become a journalist, you cannot be a psychiatrist. But if you do psychiatry, you can also be a writer. And soon after that came the emergency, which was a very, very difficult time for ethical journalists. I had just entered medical school. So I felt that I made the right decision. So I'd probably be a writer. Maybe not a very successful writer, but I'd certainly love to be a writer. Your message to the audience today. I feel a bit pompous trying to give a message to the audience as though I'm some kind of guru, which I'm not. But in my own way, specifically as far as mental disorders are concerned, it's very important to prioritize health, both physical and mental health. It's very important to have some form of meditation, some form of introspection. It's important to maintain good relationships. And if we are distressed, it's important to seek help. So, Dr. Parikh, thank you very much for joining us today. I think the conversation, I also personally learned from this conversation, and I'm sure our audience also will benefit from many things that you said, especially to improve one's mental health. Thank you. Thank you. It's a pleasure and an honor to be with you today. Thank you. Just Health for the people, by the experts, a Just Look Hospital initiative. Click the bell icon and subscribe to our YouTube channel to stay healthy and stay tuned to Just Health for the people by the experts, a public health awareness initiative by Just Look Hospital.